प्रातःकाल में सेशन संपन्न हुआ और ये दूसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। और इस सेशन में हमारे मास्टर ट्रेनर्स श्रीमान आकाश जी शर्मा, डॉक्टर आकाश शर्मा जी हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। वो अपना विषय प्रारंभ करेंगे और केवल 2-3 कुछ सूचनाएं हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। एक तो इस सेशन में सत्र में बैठते समय हमारे हाथ में एक डायरी पेन हो, जिससे हम अपने नोट्स बना सकें। जहाँ कोई बातें बताई जा रही हैं उनको हम नोट डाउन करते रहें। तो निश्चित रूप से आप लोग डायरी पेन लेकर बैठे होंगे और अपने बिंदु नोट करते रहें। इसी समय में हमारे मन में जब विषय चल रहे हों, कोई प्रश्न आते हों, तो ऐसी कोई जिज्ञासाएं वो साइड में लिख लीजिए। ऐसे कोई प्रश्न अपने ध्यान में आते हैं तो उन प्रश्नों को भी अपन लिख लें। तो आखिरी में जो 10 मिनट हम लोगों को मिलते हैं प्रश्नोत्तरी शंका समाधान के लिए, हमारी अपनी कोई डाउट्स है उनको क्लियर करने के लिए, तो उसका उस सेशन का हम लोग सही प्रकार से उपयोग कर पाएंगे। कल के भी कोई प्रश्न मन में हो, कल के भी कोई विषय के संबंधित कोई प्रश्न हो, तो वो हम यहाँ पर बताते जाएंगे। चैट बॉक्स में केवल हमारी शंका समाधान और मास्टर ट्रेनर्स जो बातें बताएंगे उन बातों को ही नोट डाउन करें, बाकी चीज़ें अभी ना लिखें। चीज़ों के बहुत समय है। सीधे सत्र प्रारंभ होने के पहले हम एक कहानी सुनेंगे। यहाँ एक छोटी सी कहानी है, उस कहानी को हम समझेंगे और उसमें 2 चीज़ें हम लोग करते जाएंगे। एक तो अगर हमें ध्यान में आ गया हो कि कहानी का शीर्षक क्या है या कहानी किस संबंध में है, कितनी लाइनों के बाद आपको समझ में आता हो, जिसको समझ में आता जाए चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे कि कहानी किसके संबंध में है और क्या उसका अंत में निष्कर्ष होगा। और उस कहानी में कोई अच्छे शब्द जो आपको पकड़ में आए हों, जो आपको समझ में आ रहे हों कि हटकर हैं, वैसी कहानियों के कोई अच्छे यूनिक शब्द जो है हमें उसको चैट बॉक्स में लिखिएगा। Arshita, continue. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, yes. Continue Okay. loudly. So here is the poem. There was a pool in the Yamuna. In that pool, a cobra named Kalia lived. The water of Yamuna always boiled with the heat produced by the poison of that cobra. Even the birds flying over that pool, being scorched, fell into that pool. The men and the animals who drank its water died immediately. God manifests himself for the destruction of the wicked. Lord Krishna noticed that the poison of that cobra was terribly spreading, and because of it, the water of Yamuna was polluted. He thought that he should feel the inhabitants of Braj and also Yamuna from the fear of this cobra. Thinking so, Lord Krishna climbed a high kadamba tree and jumped into that poisonous pool. When the cobra named Kalia saw that someone had entered its pool, it, being provoked, stood face to face with Lord Krishna. It saw that swarthy, lovely boy was standing before it. On his chest there was a mark of Shrivasthu. He was playing merrily in the poisonous water freely. This action enraged the cobra. It gripped his body very tightly from all sides. When the cow herds and cow herdesses saw that their most loving Sri Krishna was gripped tightly by the cobra, they were at the door of death. There was an incessant flow of tears in their eyes. Mother Yashoda prepared to jump into the pool for her darling son, but gopis stopped her from doing so. Being gripped tightly by the cobra was nothing but only the Lord's pastime. When Sri Krishna perceived that all the people were sad, he expanded his body, which caused the body of the cobra to break. It, then having freed Sri Krishna from its clutches, began to hiss out of anger. Its anger flamed out. Lord Krishna, while playing with it, began to maneuver. The cobra also applied tactics and maneuvered to sting and hurt him. All of a sudden, Lord Krishna, having jumped, rode the hood of the cobra and began to dance.
the cobra had 100 hoods. Whichever hood the cobra raised, Lord Krishna crushed it with the head of his feet and it began to vomit out blood from its nostrils. Every organ of its body got totally exhausted and tired. Now it remembered Lord Narayan, the primeval perceptor of the world. Seeing this condition of the cobra, its wives started eulogizing the Lord. The cobra named Kalia, also eulogizing Lord Krishna, said, O Lord, we are wicked and very angry beings by birth. We are being deluded by your divine potency. You are the prime cause of our nature and Maya. We seek refuge in you. Kindly shower your grace on us or punish us as you please. The Lord, having forgiven it, sent it to the Ramanak island and made the water of the Yamuna poisonless and sweet. Finding Sri Krishna among themselves, the inhabitants of Braj, who had become almost lifeless without him, regained life. Thank you. धन्यवाद। बहुत बढ़िया, सुंदर। आप लोगों ने जो वर्णन आपने कमेंट्स लिखे हैं, कालिया मर्दन सबने लिखे हैं, इसमें कुछ अच्छे शब्द आपको ध्यान में आए हों तो उनको भी अब कहीं नोट डाउन करें, बाद में कहीं इस पर बातचीत होगी। और सीधे ही हम यहाँ से हमारे मास्टर ट्रेनर से श्री आकाश जी को मैं इनवाइट करता हूँ। श्री आकाश जी, वेलकम, आपका स्वागत है। आपको शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं और आपका जी शुभकामनाएं। आइए, स्वागत है। सादर प्रणाम, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को सादर प्रणाम, आचार्य दीदी, प्राचार्य, पदाधिकारी महोदय सभी को। आप में से अधिकांश लोग कल थे और मुझे लगता है लगभग 80-90 लोग आज नए जुड़े हैं। तो जो लोग आज नए जुड़े हैं उन लोगों के लिए हम थोड़ा सा एक पीछे रीबैक करेंगे। आप लोग जानते हैं चूंकि शिक्षा के हम लोग तो एक रिकैपिचुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हिंदी में कहावत है, आगे पाठ पीछे सपाट, यानी रिवीजन लीड्स टू डिवीजन अंग्रेजी में से कहते हैं। तो रिवीजन बहुत एसेंशियल है। हम 500 कोटेशंस या सुविचार ना पढ़कर एक सुविचार को अगर 500 बार सोचें तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो उसी परंपरा पर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, जो लोगों ने कल यहाँ थे वे लोग रिवीजन करेंगे। आप में से कितने लोगों ने वो सेंटेंसेस प्रैक्टिस की है जो हमने फ्लुएंसी ड्रिलिंग के सेंटेंसेस लिए थे? वे लोग फटाफट, जिन्होंने, थैंक यू, जिन लोगों ने वो अभ्यास किया है वे लोग अपने आप को अनम्यूट करने के लिए हैंड रेज कर दें और मॉडरेटर्स अगर आसान हो सके वो कर लें। वे अपना अभ्यास बताएं। Betty bought some butter, but the butter was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better. दीदी देखकर बोल रहे हैं, दीदी देखकर बोल रहे हैं। As a canner, can. Can you can a can as a can? Can you can a can as a canner, can a can? And Can you can as a canner, can a can? can you can a canner as a canner, can? What do you have got to do with it? What do you have to go to do with it? Have go to do it. What do you have got to do with it? What do you have got to do with it? What to do? What do you have got to do with it? राजकुमार जी, अब आप म्यूट कर सकते हैं सबको। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस तो की आप लोगों ने, एनीवे, बट इट हैज टू बी डन बेटर। इससे अपेक्षा हमारी थोड़ी सी आगे है और इसके पीछे पर्पस क्या है? हमने कल चर्चा की थी कि हमारी फ्लुएंसी अच्छी हो। कल मैंने 2 शब्द लिखे थे अंग्रेजी के यहाँ पर। जब किसी को कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके 2 शब्द लिखे थे मैंने। एक F से था फ्लुएंट, दूसरा कौन सा शब्द था? कोई लिख सकता है यहाँ पर चैट बॉक्स? What was the second word? One was fluent and second word also starts with F,
which I asked you yesterday कि we must be dash in spoken and written both. अगर किसी को याद हो तो लिखें, अदरवाइज चैट बॉक्स में मैं लिखूंगा। तृप्ति मैडम ने लिखा है हैबिट और हेजिटेशन में 2 वर्ड लिए थे, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ धारा प्रवाहिता के लिए एक वर्ड जो एफ से शुरू होता है। फ्लॉलेस, ओके, ट्राई सम मोर, एनीबॉडी एल्स, और कोई शब्द बताएंगे? एनीवे, सो आई गिव यू वन वर्ड, फ्लुएंस लिखा है, फ्रीक्वेंट लिखा है, वेरी ऑन फ्रीक्वेंट और fluent. Anyway, yesterday I gave you flow. The word was this. ये देखें चैट बॉक्स में सामने आया है वर्ड आपके। The word is this. FACILE, facile. इसका मतलब होता है व्यक्ति को सोचना भी ना पड़े। कहा जाता है कि जो हमारी मातृ शक्ति है, नारियों में ये क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इस पे बड़ी मजेदार चीज याद आती है, कहीं पर लिखा था धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखें और महिलाओं को 50% की छूट। तो किसी पुरुष ने आगे कहा भैया कि महिलाओं को 50% की छूट क्यों है? तो उन्होंने कहा क्योंकि महिलाओं को धारा प्रवाह पहले से बोलना आता है, उनको बस अंग्रेजी सिखाना है हमें। तो ये जो धारा प्रवाहिता है ना, जो स्पीड जिसे कहते हैं, वो कुछ हमारे महिलाओं को गॉड गिफ्टेड होती है। दे स्पीक वेरी फास्ट, राइट? सो दिस इज द पर्पस। ये प्रैक्टिस हमें करना होगी और ये बहुत जरूरी है। अब सब लोग कर रहे हैं बैठकर वहीं पर अपनी अपनी जगह पर प्रैक्टिस। सिर्फ कहानी सुनने से कुछ नहीं होगा कि मैं बोलता जाऊंगा, कथा नहीं है मुरारी बापू की कि मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। नो, यू हैव टू प्रैक्टिस। अभी जो सेंटेंसेस आप लोगों ने बोले हैं उसमें आपके नंबर आते हैं 10 में से 4, 4, 5 आउट ऑफ 10, बट यू हैव टू रीच अप टू 9 और 10। सो स्पीक फास्टर। मैं स्लाइड वो सामने ला रहा हूँ, सेंटेंसेस आप सब लोग प्रैक्टिस कीजिए। जो सेंटेंस था, व्हाट डू यू हैव गॉट टू डू विद इट। इसमें 3-3 जर्क आ रहे थे लोगों के बीच में, एक बार में भी नहीं रुकना है बीच में, बिल्कुल स्मूथली एक सांस में। What do you have got to do with it? Right? Second sentence was, for example, can you can a can, as a canner can a can. Third was Betty वाला sentence था अपना, Betty bought some butter but the butter was bitter, so Betty bought some butter to make the bitter better. ये पर्पस क्या है इसके पीछे मैं बताऊंगा आपको। ये कोई मनोरंजन नहीं है, इसके पीछे पर्पस ये है। देखिए, आपसे मैं पूछूं कि एक गाड़ी जो बहुत फास्ट, जिसकी स्पीड है 200 तक की कैपेसिटी है उसकी, उसे स्लो चलाया जा सकता है, और एक गाड़ी जिसकी स्पीड है हाईएस्ट 50, क्या उसे फास्ट चलाया जा सकता है? अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं, वो मोटर बाइक मान लीजिए डिस्कवर 125 है, 150 है, वो 200 की स्पीड है उसकी कैपेसिटी, क्या उसको 20 की स्पीड से चला सकते हैं, 10 की स्पीड से चला सकते हैं? हाँ या ना में बताएं। उसको 10, 15, 20 की स्पीड से चलाया जा सकता है। आप नॉडिंग कर सकते हैं मुंडी से, और जो चैट में लिख रहे हैं वो कुछ लोग बहुत फास्ट लिख लेते हैं, वो यस यस यस। किसी एक ने लिखा है, हर्षित गोयल जी ने नो, शालू गुप्ता ने लिखा है नो, बाकी लोगों ने यस यस यस, वी कैन वी कैन वी कैन। ओके फाइन, ठीक है। चलिए मैं फिर से बोलता हूँ, एक मोटर बाइक है जिसकी हाईएस्ट स्पीड 200 की है, क्या उसे 10 की स्पीड से चलाया जा सकता है? यस, अधिकांश लोगों के यस जवाब है। क्यों नहीं चलाया जा सकता? 10 की स्पीड से चला सकते हैं, 20 की स्पीड से चला सकते हैं, लेकिन जो मोटर बाइक जिसकी हाईएस्ट स्पीड 50 है, क्या उसको 150 की स्पीड से चलाया जा सकता है? अब इसका जवाब दीजिए। नो नो, इसमें आ रहा है एक यस। जिसका यस जवाब आ रहा है वो अगर बोलना चाहें तो हाथ ऊपर करें। अगर वे कह रहे हो कि किसी मोटर बाइक के पीछे बांधकर चलाया जा सकता है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज जिसकी स्पीड 50 है उसे 150 की 100 की स्पीड से नहीं चलाया जा सकता। इसका तात्पर्य है कि अगर हमें बहुत फास्ट बोलना आता है तो हम जितना चाहे धीमे बोल सकते हैं, लेकिन जिसको बहुत धीमे बोलने की आदत हो उससे आप फास्ट बोलने को कहोगे वो गड़बड़ जाएगा। इंग्लिश में ये क्यों जरूरी है, लेट मी टेल यू। आप में से वे लोग जो सी लेवल वाले हैं कॉम्पिटेंट, उनकी लिस्ट अर्शिता दीदी ने तैयार कर ली है, उनसे भी हम बात करेंगे। जो सी लेवल वाले वो जानते हैं इस बात को। जब हम किसी से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करते हैं और सामने वाला अगर बहुत फास्ट बोलता है तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाता है और फिर हम अंग्रेजी से हिंदी पे आ जाते हैं। दिस हैपन्स क्वाइट ऑफन। ये इंग्लिश लैंग्वेज की ब्यूटी है नेचुरल, दैट इट इज स्पोकन वेरी फास्ट। हिंदी भाषा धीमे बोली जाती है, उसका उसी में सौंदर्य है, लेकिन अंग्रेजी भाषा यूजुअली आप उसी भाषा से अंग्रेजी से प्रभावित होंगे सामान्यतः जो बहुत फास्ट बोलता है। अरे देखो कितनी तेज बोलता है। इसलिए आपने देखा होगा फर्राटेदार अंग्रेजी सीखें, धारा प्रवाह अंग्रेजी सीखें। क्यों जरूरत है उसकी?
क्योंकि अंग्रेजी सामान्यतः बोली फर्राटेदार जाती है। और इसीलिए आप अगर इंग्लिश की मूवीज देखेंगे, एक अंग्रेजी की मूवी है, उसका नाम है अ फ्यू गुड मैन, बहुत शानदार मूवी, ऐसी पिक्चर है जिसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है एक भी जगह कहीं भी, हीरो भी है हीरोइन भी है, लेकिन कोई ऐसे सीन नहीं है। मैं टाइप कर रहा हूँ नाम, यहाँ पर आप में से जो लोग इंग्लिश मूवीज देखते हैं वो देख सकते हैं, और फिर आप देखिएगा उसमें से आपको कुछ भी, माने इतना फास्ट बोलते हैं वो लोग, समझना बहुत मुश्किल होगा। आज मैं दूसरे स्थान पर हूँ और इसलिए मेरे पास अपने औजार नहीं है। जैसे अर्जुन का गांडीव होता है वैसे ही अपने अपने अस्त्र शस्त्र होते हैं, उन पर आत्मविश्वास होता है अपना, तो वो आज मेरे पास नहीं है, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। तो देखिए सामने आपने देखा होगा चैट बॉक्स में अ फ्यू गुड मैन, ये मूवी है। इसे आप देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, कितनी अच्छी इंग्लिश क्यों ना हो आपकी, जब उनका कोड में कन्वर्सेशन होता है। इसलिए मेरा आपसे कहना ये है, फास्ट बोलने का अभ्यास कीजिए। whenever you want you can speak as much slow as you want, but if you are needed to speak all of a sudden very fast with somebody, you would not be able to speak fast until and unless you have the practice of it. इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आज से 20 साल पहले जब हम अंग्रेजी सीख रहे थे तो हमारे सर ने हमसे कहा कि आप इंग्लिश के अभ्यास के लिए कॉल सेंटर पर कॉल करना। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, सावधान, सभी लोग यही हैं, उपस्थित हैं, किसी का ध्यान इधर उधर तो नहीं है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जीमेल, ईमेल तो नहीं दिखने लगे हैं। प्लीज बी अटेंटिव ओवर हियर। सो नाउ सी, तो हमने फोन लगाया साहब, मेरे और मेरे मित्र ने, और हमने फोन लगाकर वहां पर बात की। तो जिनसे बात हुई बीच में लाइन फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो फोन जब डिस्कनेक्ट हुआ तो अभी चैट में ना लिखें, अभी ध्यान से समझ लें इसको। जब फोन डिस्कनेक्ट हुआ तो हमने दोबारा फोन लगाया। हम लोग बहुत धीमे धीमे अंग्रेजी बोल रहे थे। हमने फोन लगाया तो पहले फोन उठाया था किसी अरुण ने, अब फोन उठाया किसी ज्योति मैडम ने। तो हमने कहा वेल वी वांट टू टॉक टू मिस्टर अरुण, ऐसे हमने बोला, बड़े संभलते हुए अंग्रेजी बोल रहे थे। उन्होंने एकदम से बोला उस लेडी ने, well I'm sorry Mr. Arun is not here at the moment, would you like to leave any message or should I ask him to call you back after some time? जैसे ही हमने ये सुना हम डर गए और हमने फोन फटाक से नीचे रख दिया डर से। और फिर हमने दूसरे दिन सर से कहा, सर वो तो बहुत फर्राटेदार बोलते हैं, हम तो नहीं बोल सकते ऐसे। सो दिस हैपेंस विद अस। इवन 11th 12th के कोई बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे तो अपन हिंदी पर आ जाएंगे टीचर होते हुए। सो दैट इज व्हाई आई जस्ट वांट टू टेल यू, इन सारे प्रमाणों के से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग फास्ट बोलने का अभ्यास करें, और जब भी चाहे उसे धीमे कर सकते हैं। फास्ट लिखना कठिन है या स्लो लिखना कठिन है? तो जो फास्ट लिखता है वो स्लो भी लिख सकता है, लेकिन जो स्लो बहुत लिख सकता है उससे फास्ट लिखने को कहोगे वो पेन पटक देगा कि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ साहब, उसे चिड़चिड़ी आ जाएगी। सो द सेम थिंग इज देयर, दैट इज व्हाई आई वुड टेल यू ऑल, फर्स्ट टारगेट इंग्लिश लैंग्वेज में आप रखेंगे अपना फ्लुएंसी। दिस इज द फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले क्या सीखना है अंग्रेजी में? फ्लुएंसी। अब आप कहोगे गलत बोलेंगे, कुछ भी बोलो साहब बोलो। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ कि गलत बोलना कठिन है या सही बोलना कठिन है? किसी भी भाषा की हम बात करें, कुछ भी चीजों की बात करें, गलत बोलना कठिन है या सही बोलना कठिन है? बताइए, सही बोलना कठिन या गलत बोलना कठिन है? सबका उत्तर आ रहा है सही बोलना। बिल्कुल बिल्कुल सामान्य उत्तर यही होगा, लेकिन मैं आपसे अभी उदाहरण देता हूँ। ओके, देखिए किसी को हम अनम्यूट करके बुलवाएंगे तो अभी थोड़ी सी हंसी मजाक हो जाएगी। हंसी मजाक का मतलब किसी को अपमानित सा महसूस हो सकता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए गलत बोलना कठिन है, सही बोलना, गलत बोलना कठिन है, सही बोलना आसान है। आपसे मैं कहूँ आपको हिंदी में मुझसे बात करना है, लेकिन आपको सब व्याकरण गलत बोलना है, तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। मैं बाजार जा रही हूँ, रहा हूँ की जगह रही हूँ, पुरुष हूँ तो भी बोलना पड़ेगा, राइट। मैं आपसे पूछूं आपका नाम, अब आपको गलत सोचना पड़ेगा। पिता का नाम गलत सोचना पड़ेगा। कहाँ रहते हो? दूसरी कॉलोनी के नाम सोचना पड़ेंगे आपको। आपके कितने हाथ हैं, अब आपको अलग सोचना पड़ेगा। तो आप इसका अभ्यास घर पर कीजिए, प्रश्न अपने आप से पूछिए और उत्तर दीजिए। गलत बोलना ज्यादा कठिन है, इसलिए दूसरी चीज जो हमको करना, पहली आपने लिख ली डायरी में, नंबर 1 फ्लुएंसी, दैट शुड बी योर टारगेट। कुछ भी, चाहे रीडिंग हो, राइटिंग हो, स्पीकिंग हो, उन सब में आपको फ्लुएंसी का बहुत अभ्यास करना है। स्पीड, वेरी फास्ट थिंग। तो एग्जाम्पल हमने लिया है अभी सामने, जो सेंटेंसेस थे उसको कितना फास्ट बोलना, 1 सेकंड में सेंटेंस बोलना, उसे अभी भी 3 सेकंड में कई लोग बोल रहे हैं। सी लेवल वाले जो लोग हैं, अर्शिता मैडम और
राजकुमार जी आप लोग इसका अरेंजमेंट कर देंगे। हम सी लेवल के जो लोग हैं वो लगभग 10 लोगों का हम एक ग्रुप डिस्कशन अभी कराएंगे। आज तो समय शायद कम पड़े तो आज करा लेंगे अथवा कल। तो जो सी लेवल के लोग हैं वे लोग अपना वीडियो उस समय ऑन करेंगे जब हम कहेंगे, उनको हम एक टॉपिक देंगे और उसके बाद वो डिस्कशन करेंगे, बाकी के लोग सुनेंगे इंग्लिश। सो दिस इज देयर नाउ। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बताइए अगर हम बात करें भाषा की तो भाषा बोलना ज्यादा कठिन है या लिखना ज्यादा कठिन है? चैट बॉक्स में लिख दें, लिखना ज्यादा कठिन है या बोलना ज्यादा कठिन है? अच्छा, बोलना, लिखना, लिखना, बोलना। Whether speaking is difficult or writing, which is more difficult? This is I'm asking. Writing is more difficult. Speaking is more difficult. बोलना, बोलना, लिखना, 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 बोलना, बोलना। ये तो बड़े मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं भैया। Very difficult to guess. Okay, fine. I give you the example. I give you example. Okay, fine. चलिए मैं उदाहरण देता हूं आपको। फाइन, ठीक है। एक बात बताइए, हमारे हिंदी भाषा में कोई भी सब्जी वाला है, सब्जी वाला है कोई भी हमारे अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में कहीं भी, एक सामने श्री सुनील कुमार जी लुनिया साहब, इनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ऐसे ही सबकी नॉडिंग होना चाहिए। इंग्लिश में एक वर्ड है, नोट कर लें आप अपनी कॉपी में, NODDING, नॉडिंग। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए बहुत अच्छा लिसनर होना जरूरी है। तो ये सुनील कुमार जी बहुत अच्छे लिसनर है क्योंकि वो नॉडिंग करते हैं, यानी मूवमेंट हेड का करते हैं, राइट? सो अदर्स दोज हु आर आल्सो देयर, दे शुड आल्सो बी एक्टिव। एनीवे, थैंक यू सुनील जी। सो नाउ सी, एक व्यक्ति है सब्जी वाला, वो बहुत धारा प्रवाह बोल लेता है, क्या वो लिख लेगा? अगर हम उससे लिखने को कहें तो वो लिख लेगा? नहीं लिख पाएगा, राइट? उसके लिए बहुत कठिन होगा। और अगर आप जैसे मान लीजिए 291 पीपल है अभी, है ना, 291 लोग हैं हमारे साथ लाइन पर, सभी लोग यहीं पर लेट गया हो जबकि आने वाली हो तो प्लीज सावधान। यहाँ देखें क्लास में हम सब लोग समय आपके लिए निकाल कर बैठे हैं, प्लीज। सो लेट अस डेवलप, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब 290 लोग हैं मान लीजिए, और 290 लोगों से कहा जाए कि आप सबको एक एक कागज दिया जा रहा है, आपको एक पेज लिखना है कुछ भी, राइट? और उन्हीं 290 लोगों में से आमंत्रित किया जाए, आप में से कुछ लोग मंच पर आए, ये सामने 290 लोग बैठे हैं, इनके सामने आकर कुछ बोले, तो आप सब गैस कर सकते हैं इस बात को कि बोलने के लिए बहुत कम लोग आएंगे, ना कि बराबर आएंगे। यहाँ बोलना कठिन है, लिखना आसान है। आप क्लास में करके देखिए एक्सपेरिमेंट, बच्चों से कहिए बच्चों महात्मा गांधी के विषय में लिखो, एक एक पेज दे दो, सब लिख देंगे। और उनसे कहो कोई आकर 2 मिनट बोले तो 60 बच्चों की क्लास में मुश्किल से 2-3 बच्चे आएंगे। So now this is, we can't say that listening, speaking is difficult or writing is difficult. It depends. It depends. Now again, let us come over here. अब आप लोग बताएं जरा चैट बॉक्स में फटाफट, how many skills are there in any language? हमें चूंकि सभी स्किल्स पर बराबर ध्यान देना है और इनको इम्प्रूव करना है, तो भाषा में कितनी स्किल्स होती हैं? जैसे अभी हमने एक स्किल की बात की, स्पीकिंग। ओके, गुड, वेरी गुड। वो लिख दें जरा फटाफट कौन सी वो स्किल है, क्योंकि मैं सीधे सीधे बोलूंगा ना, ये कुछ लोग प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं, उसे ना करें अभी, एवरीवन पर कर दें उसे, शायद वो देख नहीं पाए होंगे, एवरीवन पर कर दीजिए ताकि सभी लोग पढ़ते जाए मैसेज, है ना। प्राइवेट चैट के लिए हम लोग कम्युनिकेशन अलग कर सकते हैं बाद में, पहले जी। 4 स्किल्स है, ठीक है, लिख दें कौन कौन सी है। लिसनिंग आ गया सामने, वेरी गुड। मनोहर कुमार दास जी ने लिखा है, चारों स्किल बता दी हैं, ओके, ठीक है। LSRW, इनका सही किस क्रम में हम सीखते हैं भाषा को? अंग्रेजी भाषा हमने जब सीखी तो सबसे पहले क्या सीखा? स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। सबसे पहले क्या सीखा हमने? जब अंग्रेजी भाषा सीखते हैं हम लोग, बच्चों को सिखाते हैं, तो सबसे पहले क्या सीखते हैं बच्चे? यस, पीपल आर स्मार्ट, बहुत स्मार्ट लोग हैं। LSRW, सबसे पहले स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग। ओके, लिसन, स्पीक, राइट, फ्लो, रीड, राइट, लिसन, स्पीक, करेक्ट। ये लखिंद्र सिंह जी ने लिखा हुआ है, ये बात सही है, हम गलत क्रम से चलते हैं। एनीवे, आप में से आई अप्रिशिएट वेरी मच, काफी लोगों के आंसर सही हैं, आई एम वेरी हैप्पी। ये सी लेवल वाले लोग होंगे,
यस, ये 4 स्किल्स हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लेकिन एक और स्किल है, वो कोई बता सकता है? कैन एनीबॉडी राइट? हमने मॉर्निंग वाले उसमें चर्चा की थी एक दिन, यहाँ चर्चा नहीं की। इस LSRW के अलावा भी एक स्किल है, जिनके पास ये नहीं है वे लोग लिख लेंगे। LSRW, इनका फुल फॉर्म है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इनको सीखने का सही क्रम भी यही है। हम जब हिंदी भाषा में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले सुनता रहता है, केवल ध्रुव जी का उत्तर आ गया है, फिर उसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। लेकिन समझे ध्यान से, सभी लोग सुनिए, अंग्रेजी कठिन क्यों हो जाती है? क्योंकि अंग्रेजी को हम उल्टे ढंग से शुरू करते हैं। हम राइटिंग से शुरू करवाते हैं, ए लिखो, ए ऐसा बनाओ, फिर उसके बाद उसको रीडिंग, फिर उसके बाद लिसनिंग, फिर उसके बाद स्पीकिंग। इसलिए वो भाषा उल्टे क्रम से सीखी जाती है। सब लोग ध्यान दें इस बात पर। हमें किस क्रम में सीखना है? LSRW, फर्स्ट लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग। राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ जो बहुत सारे आप लोगों ने आंसर दिए, सही बात है, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, थिंकिंग, फीलिंग, इमेजिनिंग, विजुअलाइजिंग, सब सही है, लेकिन इसमें मेन बात है थिंकिंग। तो 4 स्किल हुई, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इनको सीखने का सही क्रम, सबसे पहले खूब अंग्रेजी सुने। हमने कितनी अंग्रेजी सुनी जीवन में? अपने आप से पूछे तो हमें मालूम पड़ेगा, बिल्कुल इस मामले में हमारा बैलेंस बहुत कम है, इसलिए हमारी स्पीकिंग डेवलप नहीं हुई। अगर हम सुनते रहेंगे तो बोलने लगेंगे। देन कम्स रीडिंग, देन कम्स राइटिंग। ओके, सो दीज आर 4 स्किल्स एंड देन देयर इज थिंकिंग। थिंकिंग, इन सबके थिंकिंग के बिना सब बेकार है। अब हमें एक अभ्यास करना है, ठीक है? आंखें बंद करें सब लोग, कमर सीधी कर बैठे, कीप योर स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट, क्लोज योर आईज प्लीज, ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर बाकी सब लोग आंखें बंद कर लें, एंड जस्ट क्लोज योर आईज। सभी ईमानदारी से आंखें बंद कर ले, मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुने। मैं हिंदी में बोलूंगा, मैं आपसे जो कुछ कहूंगा उसके विषय में आप इंग्लिश में सोचेंगे। कुछ सेकंड के लिए मैं आपको एक टॉपिक दूंगा और उसके विषय में जो कुछ आए आपको, जैसे इवन डॉग, तो आप सोचोगे डॉग, चिंता मत कीजिए ग्रामर की वोकैबुलरी, जो कुछ आपका, डॉग 4 legs, 2 ears, ears नहीं आया छोड़ दो, teeth, इट बार्क्स, बार्क्स नहीं आया तो बोलो इट भौंक, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अभी ऐसे आपको इंग्लिश मन में ऐसे सोचना है, राइट? आंखें बंद करे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग गॉड, आंखें बंद रखेंगे, थिंक अबाउट गॉड, think in English, every sentence should be in English, think whatever comes to your mind. Temple, we go to temple, aarti in the temple, we worship God, right? We put fragrance stick, agarbatti, fragrance stick nahi aata chalega, agarbatti stick, okay? We take round circle, chalega, in place of parikrama or pradakshina, if you are not able to say that, we take a round, okay? Then prasadam, offering कहते हैं प्रसादम को, प्रसादम, priest in the temple, big bell, we ring the bell, right? Like this. अभी ना pronunciation की चिंता करना है, ना grammar की, ना vocabulary की, whatever comes to your mind. Next, Saraswati Shishu Mandir. Think about Saraswati Shishu Mandir in English. Very old organization, right? Culture, Indian culture, discipline, great people, right? Bauddhic, Pracharak ji give good Bauddhic, we attend Varg, we call Acharya ji Didi, like this. Think, keep thinking. Next topic, think about India, in English only, think. In between I would speak, बीच में मैं कुछ sentence बोलूंगा लेकिन आप सोचते रहो अंग्रेजी में. India is a huge country. There is unity in diversity. There are many states, many languages, innumerable, unginat dishes, cultures. South India, North India, Jammu Kashmir is a beautiful place. We have 4 dham, 4 highest pilgrim places. Right? Think in English. Whatever comes to your mind about India, many rivers, holy river, Ganges, Ganga. Right? India is land of
incarnations. It's a land of saints, monks, संत महात्माओं तपस्वियों की भूमि है. Famous places of India, loving place of India. Okay, fine. Like this is thinking in English. Okay, now you can open your eyes. अब आप आंखें खोल लीजिए. जिसकी नींद लग रही है वो लोग थोड़ा पानी के छींटे आंखों पर डाल लें. अब देखिए ये है थिंकिंग इन इंग्लिश. सबको हमको इसका अभ्यास करना है पर डे. टेक डिफरेंट टॉपिक्स. जस्ट टेक एनी स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, टेक एनी टीचर ऑफ योर स्कूल एंड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हिम और हर. कंप्यूटर, मोबाइल फोन के विषय में सोचने. मोबाइल फोन मेनी फंक्शंस. Now many things are outdated because of mobile phone. Diary, alarm clock, letter, greeting cards, you know, even money transfer, ATM, ये सारी चीज outdated हो गई. Torch, there is torch also. Calendar, calendar की भी जरूरत नहीं. Organizer, we don't need it. So many things. Mobile phone has many uses. There are many kinds of mobile phones. Smartphone, feature phone, dumb phones. Nowadays everybody has mobile phone. They are very cheap, सस्ते हैं. तो इससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी. आपको मालूम पड़ेगा. जब हम धाम के विषय में सोच रहे थे, धाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो हमें आएगा पिलग्रिम प्लेस. तो आप डिक्शनरी देखोगे और हम भाग्यशाली हैं, जैसे ही मोबाइल में टाइप करेंगे तीर्थ तो आपको अंग्रेजी आ जाएगी. उसकी डिक्शनरी आपके हाथ में ही है, बहुत इजी, राइट. सो ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू devote a lot of time on thinking in English. This is very important. So when you would think, then you would be able to speak or write. Fine. So please do this practice every day. हम लोग भी क्लास में करेंगे पर डे. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे हर्षिता दीदी जब हमारे स्टोरी सुना रही थी तो आप लोग कल्पना कर रहे होगे कालिया मर्दन की. कृष्ण जी कैसे नाच रहे थे, उसके 1000 फनों के ऊपर कृष्ण जी नृत्य कर रहे थे. ये हमारी विजुअलाइजेशन आती है. उसके साथ साथ वी हैव टू कीप ऑन थिंकिंग. आई गिव यू वन मोर एक्सरसाइज. एक और एक्सरसाइज, तो ये लिख लें प्लीज कॉपी में, होमवर्क. थिंक इन इंग्लिश. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे टाई. TIE कैपिटल में. T फॉर थिंक, I फॉर इन, E फॉर इंग्लिश. थिंक इन इंग्लिश. अंग्रेजी में सोचें. ये विचार करना है. ये मूल मंत्र है. अंग्रेजी सीखने का गुरु मंत्र है ये. टाई, थिंक इन इंग्लिश. डिवोट एवरी डे समटाइम. सुबह सोकर उठे, बैठे और अचानक लेट मी थिंक अबाउट टुडे. टुडे आई विल गो टू स्कूल. I will take my online class like this. I will attend to this. I will do homework. अब आप कहोगे सर आप तो बोल रहे हो अंग्रेजी आती नहीं आती. चलो नहीं आती तो क्या कहूंगा, I homework, I food, eat. अरे ऐसा तो बोल पाओगे? बोलो. निकलना जरूरी है पहले, है ना. जब भाव ही नहीं आएंगे तब फिर शब्द कहाँ से आएंगे, और शब्द भी होंगे तो भाव के बिना उनका क्या कर लेंगे. तो दैट इज व्हाई इट इज एसेंशियल. सो थिंक इन इंग्लिश. ये आपका होमवर्क है. आपको अंग्रेजी में सोचना है. खाना खा रहे हैं, थिंक इन इंग्लिश. स्नान कर रहे हैं, थिंक इन इंग्लिश. कपड़े धो रहे हैं, थिंक इन इंग्लिश. बर्तन मांज रहे हैं, थिंक इन इंग्लिश. गाड़ी चलाते में ज्यादा मत सोचना, है ना, वो थोड़ा रिस्की हो सकता है. सो डू नॉट टेक दैट रिस्क, बट एट अदर प्लेसेस यू कैन. ओके फाइन. नेक्स्ट. नाउ सी, सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अगर कोई मुझसे कहे, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं. बहुत से लोग, मैं कहूं कि पूरे संसार भर में या देश में 100 में से अगर कहें तो 95 लोग तो ऐसे होंगे, अगर उनसे कहेंगे आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, वो कहेंगे यस, राइट. If I would ask you also, भले ही आप में से कुछ लोग प्रोटोकॉल के कारण यहाँ पर आ रहे हो कि अधिकारी जी ने कहा है, प्राचार्य महोदय ने कहा है, और वो देख रहे थे, क्यों भैया कल तुम नहीं थे, तो फिर वो डांट पड़ेगी इस कारण से. लेकिन नहीं, मैं आपको बताऊं, ये आपके खुद के हित में है. इंग्लिश वुड बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. ऑनलाइन जॉब्स बहुत आसान है इस समय करना अगर अंग्रेजी बहुत अच्छी है. लेकिन इतने दुर्भाग्य की बात है, हिंदी का टाइपिंग भी शुद्ध नहीं करते हैं लोग. हमारे 10 टाइपिस्ट को आप बिठाएंगे, उनमें से 9 टाइपिस्ट, 90% हमारे टाइपिस्ट हिंदी में त्रुटि करते हैं. मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूं, लेकिन उनकी हिंदी की टाइपिंग की गलतियां मैं सुधारता हूं. आप लोग सहमत होंगे मेरी बात से. अगर सहमत है तो अपना हैंड रेज कीजिए, यस और नो. आप लोगों ने भी जो भी टाइपिंग करवाते हो अपने पेज, नोट्स मोट सब, उसमें बहुत त्रुटियां होती हैं उन लोगों की तरफ से. आप नो कहेंगे तो भी मैं मान लूंगा, अपना बदल लूंगा. अधिकांश लोगों के हाथ हैंड रेज, दे आर 9 people have raised their hands up and yes they are saying. So this is my request to you all, please. हम खुद भी अपनी भाषा उन्नत करें और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें कि वे अपनी भाषा समृद्ध करें. ओके फाइन. सो लेट्स प्रोसीड. अब सब लोग सीखना चाहते हैं, सब 100 में से 95 लोग.
फिर क्यों नहीं सीख पाते? बताइए आप, इसका उत्तर लिखिए, गलत सही जैसा भी हो टाइप चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दें। जब 100 में से 95 लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो वे क्यों नहीं सीख पाते? बताइए। एक कोई भी रीजन लिख दीजिए, वॉट एवर यू फील दिस रीजन। लैक ऑफ इंटरेस्ट, ओके, बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, ये आंसर आ रहा है। लैक ऑफ एनवायरनमेंट, करेक्ट, ये भी सही बात है। शर्माने के कारण, हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वी डोंट थिंक इन इंग्लिश, कीर्ति तिवारी ने आंसर दिया, वी डोंट थिंक इन इंग्लिश, गुड, दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट। एजिटेशन बाद में करेंगे, ये पूनम खन्ना ने बहुत अच्छा जवाब दिया है, बाद में कर लेंगे। ये देखिए, सी वेरी इंटरेस्टिंग आंसर, फिर कर लेंगे, है ना। अभी कौन जिंदगी जा रही है, अभी कौन कयामत आ रही है, फिर कर लेंगे। हाँ, राकेश जी भाई साहब फिर दयालु होंगे, फिर कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स शुरू करेंगे, फिर सीख लेंगे। यस यस यस, ओके फाइन। स्वामीनाथ जी ने लिखा है कि वो दिमाग से प्रयास नहीं करते। प्रफुल्ल कुमार जी राउत ने लिखा है ट्रेनर की कमी, लैक ऑफ ट्रेनर्स, ट्रेनर्स की कमी है। पंकज कोहली जी ने लिखा लेजी हैं लोग, बाग आलसी हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रताप चंद्र बारिक जी ने लिखा है थिंकिंग पावर उनकी कम होती है। ठीक है, आप सबके उत्तर सही है। मैं एक कारण मैं भी बता देता हूँ, आप सबके बिल्कुल सही है। वी कैन नॉट ट्राई कंप्लीटली। सृष्टि का भी जवाब है, बहुत अच्छी बात है सृष्टि। एनीवे, थैंक यू। आप में से कोई भैया बड़े हो आयु में तो क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं वो लास्ट में क्षमा मांग लिया करूंगा। सी फाइन, ये सब कारण है। इसके साथ साथ एक और कारण है, इस देश में करोड़ों लोगों ने रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स खरीदी, और आज नहीं, आज से 40-50 साल पहले आपके पिताजी या दादाजी ने भी खरीदी होगी। अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है, सुने सभी लोग ध्यान से, टू ऑब्टेन समथिंग इज वेरी इजी बट टू सस्टेन इट इज वेरी डिफिकल्ट। सरल शब्दों में कहूं, टू स्टार्ट समथिंग इज वेरी इजी बट टू कंटिन्यू इट इज वेरी डिफिकल्ट। किसी चीज को आसान करना शुरू है, उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल है, इतना कठिन है। मैं एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ आपको। मैंने अभी एक मेडिटेशन सीखा, उन्होंने मेडिटेशन सिखाने के बाद मुझसे कहा डिटर्मिनेशन, ये सब हमारी वोकैबुलरी भी अपने आप बढ़ती जा रही है। डिटर्मिनेशन, टू वर्ड्स आर देयर, वन इज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन आप जानते हैं, एक स्क्रीन का रिजोल्यूशन होता है, और दूसरा रिजोल्यूशन माने संकल्प, और एक है डिटर्मिनेशन। सो वी हैव टू बी डिटरमाइंड और रिजोल्यूट फॉर इट, राइट, देन वी कैन लर्न वेरी वेल, तब हम सब आसानी से सीख सकते हैं। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, नियमितता बनाए रखेंगे। अब कैसे नियमितता बनाए रखेंगे? अब ध्यान आप स्क्रीन पर देंगे। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। राजकुमार जी आप देखिएगा क्या स्क्रीन शेयर हो पा रही है? वे लोग जो कल नहीं थे, राजकुमार जी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ, हो रही है भाई साहब। ठीक है प्रभु, मैं आपको सोने नहीं दूंगा। अरे भाई साहब, मैं सुन रहा हूँ पूरा, मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ साथ। ग्रेट, यू आर आल्सो लर्निंग, गुड गुड गुड। बस राजकुमार जी, वो कंटिन्यूटी की कमी रह जाती है ना जी। तो ना आप, जी नहीं नहीं भाई साहब, लगातार कंटिन्यू 10 दिन सीखूंगा आपसे। गुड गुड, थैंक यू। तो हमें करना क्या है, कल मैंने आपसे बात की थी सिंसियरिटी और कॉन्फिडेंस, हमें इसे अपने रूटीन में बना लेना है। आप नियम बना लीजिए कि रोज प्रतिदिन 1 घंटा आपको देना ही देना है, क्लास लगे या ना लगे, विद्या भारती पढ़ाए या ना पढ़ाए, एवरी डे यू हैव टू डिवोट 1 hour। जैसे मैंने आपको कहा कि संकल्प ले लें, रात्रि में तब तक नहीं सोएंगे जब तक 1 घंटे अंग्रेजी को नहीं दे देते। सो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट इन योर रूटीन।
नेक्स्ट इज, आप सामने स्लाइड पर देख पा रहे होंगे, राजकुमार जी स्लाइड चेंज हो गई ना, रोड मैप आ गया सामने? नहीं, रोड मैप नहीं आया, ऑनलाइन लर्निंग अभी पहली स्लाइड है। आर यू सीरियस? इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को परेशान करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है। अभी स्लाइड चेंज हुई? नहीं, अभी नहीं हुई। यस, पॉज हो गई है शायद। एनीवे, लेट मी ट्राई अगेन। यस। यस, इज इट आई क्या सामने स्लाइड? नहीं, अभी नहीं, अभी शेयरिंग हो रही है। This could be due to network issue. हाँ, Can you yes. give me your email? आ गई? नहीं, अभी नहीं आई। रोड मैप भी नहीं आया? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, राजकुमार जी प्लीज गिव मी योर ईमेल आईडी सो दैट आई कैन फॉरवर्ड इट यू। यस, मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ। जी प्लीज। सो फाइन, एनीवे आप लोग कॉपी पेन में नोट करें प्लीज। ये आप नोट कर चुके होंगे, हम रिवीजन कर रहे हैं LSRW। उसके बाद में बिल्कुल सही सेंटेंस यहाँ पर लिख रहे हैं, जिसे बिना देखे आप सबको बोलना है। कल हमने जिसका अभ्यास करवाया था, सभी को इसका अभ्यास करना है। इसके पीछे बहुत सारे फायदे हैं। एक सांस में 1 सेकंड के अंदर इस सेंटेंस को बोलने का अभ्यास करना है सभी को। बैठी वाला सेंटेंस अभी आ जाएगा। मैं फिर से स्क्रीन शेयरिंग की कोशिश करता हूं, एक बार और देखिएगा। राजकुमार जी स्क्रीन आए सामने तो बताइएगा मुझे। हाँ भाई साहब, आ गई है स्क्रीन। स्लाइड चेंज हो रही है? जी करिए, इसके बाद सेकंड। हाँ ठीक है, हो रही है। हाँ, पहले सुना था कि भगवान रामायण में आता है, सुनो भरत होनी प्रबल, बिलख बोले मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अब मुझे लगता है इसमें इंटरनेट और जोड़ देना चाहिए ना। सुनो भरत होनी प्रबल, बिलख बोले मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश और इंटरनेट विधि हाथ। इंटरनेट की भी स्पीड कब चली जाए, कब नेटवर्क चला जाए, नोबडी नोज। फाइन, सो सामने है आपके रोड मैप। नया वर्ष यानी 31 दिसंबर खत्म होने 2020 तक, 2021 जब प्रारंभ होगा 1 जनवरी तक, तब हम सबको वी ऑल हैव टू बी वेरी फ्लुएंट एंड एफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अभी से कितने दिन बचे हैं इसमें? अगले वर्ष आने में लगभग मैं समझता हूँ 76 करीब होंगे, 76 डेज अप्रोक्सीमेटली। ये रोड मैप आपको बनाना है। ओके, अब जो सी लेवल वाले लोग हैं वे लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। वे लोग मुझे ये बताएं, क्या वे अपनी अंग्रेजी से संतुष्ट हैं? यस और नो। आर दे कंप्लीटली सेटिस्फाइड? सी लेवल वाले, कल हमने बात की थी सी लेवल की, वो सी लेवल वाले लोग, उनसे मैं चैट कर रहा हूं। आर यू सेटिस्फाइड विद योर इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी? जिसने यस दे बोला है उनसे मैं बात करना चाहूंगा, जिन्होंने नो बोला है वो तो ठीक है, क्योंकि मेरा उत्तर भी नो है। नो 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 नो। किसी ने यस बोला, एक दो लोगों ने, वो वीडियो ऑफ कर लें, ऑन कर लें अपने, और अनम्यूट कर लें और बोले प्लीज। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ प्लीज, ऑफ सी लेवल, दोज हु से दैट दे आर satisfied with their English language. Please, can they switch on their videos? Raise your hand so that we can talk. देखें जरा राजकुमार जी, वो लोग, उनमें से कोई हो जो यहाँ पर यस लिखा है उन्होंने, वो लोग तैयार हो बात करने को, तो आई वांट टू टॉक टू देम। विभूति झा जी ने वीडियो ऑन किया है। हाँ जी, यस, who switched on the video and speaking also? जो वीडियो ऑन करके अपना हैंड रेज करेंगे फिर हम बात करेंगे। ओके, यस, अब ठीक उत्तर आना शुरू है, 40%, 60% लाइक दिस। फाइन, ठीक है। बात यही है, देयर इज नो डेस्टिनेशन, कोई इसमें अंत नहीं है, जीवन भर हमें सीखते सीखते रहना है। स्लाइड आने लगी सर? आने लगी भाई साहब? ठीक है। नाउ सी, ये सेंटेंस हमने कल प्रैक्टिस की थी। जो लोग कल नहीं थे वे लोग क्लास के बाद में रुकेंगे और इन सेंटेंसेस को लिख लेंगे ताकि दूसरे लोगों का समय बर्बाद ना हो। जो लोग कल नहीं थे वे लोग देखिए, हमने कल 3 लेवल बताए थे। आप लोग जो आज ज्वाइन हुए हैं वो डिसाइड करेंगे उनका लेवल इनमें से कौन सा है। ए का मतलब एबल, बी का मतलब बेसिक, सी माने कॉम्पिटेंट। यही स्लाइड दिख रही है ना सामने राजकुमार जी? हाँ, तो सी माने कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब वे लोग जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल लेते हो, लिख लेते हो, वे आ गए सी लेवल के। वे लोग
जिनको लगता हो कि नहीं भैया हमें अंग्रेजी नहीं बनती अभी, हमें तो शुरू से सीखना है, वो हो गए बेसिक बी लेवल वाले। एबल का मतलब ये हुआ जिनको लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत अंग्रेजी हमको आती है, काम चलाऊ अंग्रेजी हिंदी हमको आती है, राइट? सो दे आर ऑफ ए लेवल, एबल, एबल, बेसिक एंड कॉम्पिटेंट। तो जो लोग आज नए ज्वाइन हुए वे लोग अपने अपने लेवल डिसाइड कर ले, आगे से जो आपका परिचय होगा वो इसी लेवल के अनुसार होगा और इसी लेवल के हिसाब से हम ग्रुप बनाएंगे। Whosoever are there, fine, A B आंसर आ रहे हैं हमारे पास, we would work over it। सी लेवल वाले जो लोग हैं वे लोग कोऑर्डिनेट करें जरा, हमारे पास नाम है उनके, वे लोग ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयार रहें, हम लोग कोशिश करेंगे इस क्लास के बाद में ग्रुप डिस्कशन की। नाउ फाइन, नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। राजकुमार जी, हमारी वेबसाइट पर, विद्या भारती की वेबसाइट पर एसेंशियल स्ट्रक्चर की एक शीट है जी, आप उस पर एक्सेस करने की कोशिश करें और उसे स्क्रीन पर लेकर आए। मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ शीट कौन सी है वो, ठीक है। मैं चैट बॉक्स में टाइप कर रहा हूँ। ओके, रेखा साहू मैडम सी, रेस्ट अदर पीपल आर ऑफ। ये एसेंशियल स्ट्रक्चर्स की शीट है, मैंने आपको मिल गया चैट बॉक्स में लिखा, मिल गया राजकुमार जी? फाइन, ओके फाइन। देखिए अब समझे सभी लोग, वापस आ जाएंगे हम लोग। स्किल्स ऑफ ए लैंग्वेज की हमने बात कर ली, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, थिंकिंग, इसको भी ऐड करना है, right? About this we talked and then we are coming to something different in the chat box again। अब देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रैक्टिस, ये तीन चीजें आप इसको कॉपी पर लिख लें, प्लीज राइट डाउन ऑन योर नोटबुक। These three things are very important for developing our English language or any language, right? स्क्रीन सामने आ रही है ना सर? आ रही है भाई साहब, आपकी स्क्रीन दिख रही है सामने। जो दिखा है वो लिखा है वो दिख रहा है जी। ग्रामर, वोकैबुलरी एंड प्रैक्टिस, दीज थ्री थिंग्स वी हैव टू प्रैक्टिस। अब इसमें हम लोग कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, प्रैक्टिस के लिए एवरीडे आई वुड गिव यू सम एक्सरसाइजेस, यू वुड प्रैक्टिस थ्रू दैट। ग्रामर के टोटल वी वुड बी टेकिंग 30 स्ट्रक्चर्स जिनको हम टच करेंगे, और जो 30 स्ट्रक्चर ग्रामर के जानते हैं वे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं, वे धारा प्रवाह अंग्रेजी लिख सकते हैं। वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, कुछ जरा आप लोग में से टाइप कर कर बता दें चैट बॉक्स में, अगर आपको किसी को अंदाज हो कि वे स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। अपनी साइट का नाम क्या है जिस पर ये एसेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, विद्याभारती.net या ई पाठशाला, किस नाम से है? मैं अभी बताता हूँ भाई साहब, 5 मिनट में मैं भाई साहब से डिस्कस करते हैं, राकेश जी भाई साहब से। मैं देख लेता हूँ। नहीं, ये आकाश जी वीसोल्ड वाली, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा देखिए, अगर आपको ये ध्यान में आ रहा हो तो। ये वाला है क्या? आप उस पर शेयर कर रहे हैं भाई साहब? हाँ, मैंने ये शेयर किया, दिख रहा है क्या आपको? जी भाई साहब, ये इसकी जरूरत हमें कल पड़ेगी। एसेंशियल स्ट्रक्चर वेबसाइट अपनी विद्या भारती ई पाठशाला। हाँ, ई पाठशाला .com, ई पाठशाला vb.com। ई पाठशाला इन सबको भी मालूम पड़ जाएगी, आप इसमें लिख देंगे चैट बॉक्स में? जी जी बिल्कुल, मैं लिख रहा हूँ। ई पाठशाला VB, हाँ .com।
ये वेबसाइट हम सभी लोगों के लिए इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि जो स्पोकन इंग्लिश के नोट्स हैं वो आपको सभी को उस वेबसाइट पर मिलेंगे। आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। कुछ नोट्स मिस हो जाते हैं तो भी इस वेबसाइट पर वो मिलते रहेंगे। भाई साहब ने चैट बॉक्स में शायद कर दिए शेयर, मैं फिर क्लिक कर कर पहुंचता हूँ। जी भाई साहब धन्यवाद, मैं खोलता हूँ सामने। यहाँ नेट की स्पीड कम है, आज मैंने आपको बताया मैं वनवास जैसी स्थिति में हूँ। यस ठीक है, शेयरिंग ऑप्शन में आकर मैं करता हूँ। आप सभी लोगों के लिए किया जा रहा है भैया, ये ध्यान से देखें। भाई साहब शेयर हो रही है स्क्रीन? जी हो रही जी, तो आप सभी लोग देख लें। हमारे जो स्पोकन इंग्लिश के नोट्स हैं वो ये वेबसाइट का जो भाई साहब ने अभी एड्रेस डाला है उस पर स्पोकन इंग्लिश के नाम से आपको मिल जाएंगे। ये स्पोकन इंग्लिश, आपको बहुत सारे विषय उसमें स्पोकन इंग्लिश है। एक स्पोकन इंग्लिश लिखा हुआ है, एक जगह स्पोकन इंग्लिश 1 लिखा हुआ है। उसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, राइट। जैसे ये सामने आ रहा है, हियर आल्सो इट इज, देखिए अंग्रेजी विषय टॉप में है, टॉप में लिखा हुआ, टॉप मेन्यू में। अच्छा, ऊपर भी लिखा हुआ है सामने मेन्यू में स्पोकन इंग्लिश का। ठीक है, मैं इस पर भी क्लिक कर लेता हूँ। इंग्लिश स्पोकन, 2 ऑप्शन है हमारे साथ, इंग्लिश स्पोकन 1। ये देखिए सारे स्ट्रक्चर्स आ गए हैं सामने। दीज अंग्रेजी संभाषण, क्वेश्चन, सी, लुक एंड ऑल दिस ऑल, राइट। यहाँ से आप लोग जो भी चाहें, ये भाई साहब डाउनलोड की भी फैसिलिटी इनमें है। इनमें जी जी सब डाउनलोड हो। यू कैन डाउनलोड ऑल्सो, यू कैन सी ऑल्सो। मोबाइल पर भी देख सकते हैं आप, वेबसाइट में भी देख सकते हैं, इसमें ये सब है, राइट। इसमें एसेंशियल स्ट्रक्चर शायद क्लासीफाई कर कर कहीं डाल दी हो, आसपास में दिख रही हो। और राजकुमार जी तो आप शेयर कीजिएगा। यस्टरडे आई सॉ इट, कल मैंने देखकर अपने स्कूल में डाउनलोड करके दी थी कुछ लोगों को, एसेंशियल स्ट्रक्चर्स। ये वेबसाइट आप सभी लोग नोट भी कर लें। मोबाइल फोन में अगर आप लोग जानते हो बुकमार्क करना तो उसको बुकमार्क कर दीजिए और यहाँ से सभी लोग नोट्स प्राप्त कर लेंगे। आज जो साइड आपको देखना है, इसमें होमवर्क है थोड़ा सा, वो आपको देखना है एसेंशियल स्ट्रक्चर्स। मैंने भी लिखा था चैट बॉक्स में। ये पेज आपको खोलना है वेबसाइट पर और उस पेज को खोलकर उन स्ट्रक्चर्स को देखना है जिनके विषय में हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। दूसरी जो शीट आपको खोलना है उसे भी नोट कर लें प्लीज सभी लोग, वो है वर्ब, VERB, वर्ब्स। वर्ब्स की शीट देखना है आपको, जो कुछ समय पहले भाई साहब ने दिखाई थी। उसका सेकंड पार्ट था एडवांस लेवल वाला, सो दैट वी वुड सी, राइट। तो वर्ब की शीट आप लोग वो देखेंगे। ये कल के लिए, अब देखिए बहुत आप लोग कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मालूम है। अच्छा चलिए, लिखना शुरू कर दिए लोगों ने। टेंस मॉडल्स, वर्षा मैडम ने लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ओके। और कोई, आई हैव गॉट अ एक्सेस बट इट्स शोइंग 24 स्ट्रक्चर्स। शालू गुप्ता, शालू जी 30 स्ट्रक्चर होंगे उसमें। एनीवे यू कैन शेयर। मैंने आपसे कहा दूसरे सिस्टम पर मैं हूँ आज, इसलिए थोड़ी सी स्थिति बहुत असहज है। एनीवे वी विल ट्राई। सो वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो टोटल 30 स्ट्रक्चर्स हमको प्रैक्टिस करना है। उनमें से कई आपको आते होंगे, कई नहीं आते होंगे, तो उनका हम अभ्यास कर लेंगे। दोज स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजकुमार जी आप एक्सेस कर पाए हो एसेंशियल स्ट्रक्चर्स कहाँ मिल रही? क्योंकि ये मेरी जानकारी में नहीं था। इंग्लिश स्पोकन के 2 पार्ट कर दिए, स्पोकन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश 1। ये मुझे जानकारी नहीं थी, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो रहा है। मेरा निवेदन है इसको एक ही जगह कर दें या तो जी इस सत्र के व्हाट्सएप ग्रुप बने तो उस पर मैं इन सबको मैसेज कर दूंगा। जी ठीक है। एनीवे सो ग्रामर पर हम लोग बात कर लें। अब मैं एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप लोग इसको अंग्रेजी में
जैसा चाहे वैसा, जैसा आपसे बने वैसा आप लिख दीजिएगा, इसको इंग्लिश में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, या आपको मुझे फोन करना चाहिए था। एक वाक्य मैंने बोला है, आपको मुझे फोन करना चाहिए था, ठीक है, वेरी गुड। आशा रानी मैडम ने लिखा है, बाकी के लोग गलत सही की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओके, यू शुड कॉल मी, यू शुड हैव कॉल्ड मी, यू शुड कॉल मी, यू शुड कॉल टू मी, यू शुड हैव कॉल्ड मी, फाइन, गुड गुड। देखिए अब इसमें से लगभग अगर हम देखें तो 80% लोगों के जवाब आ रहे हैं यू शुड कॉल मी, और 20% के जवाब आए यू शुड हैव कॉल्ड मी। कुछ की थोड़ी सी गड़बड़ है ग्रामर में, वो ठीक है, चलेंगे, हम बात करेंगे। देखिए यही ग्रामर की बात है। यू शुड कॉल मी का अर्थ होता है आपको मुझे फोन करना चाहिए, इतनी अंग्रेजी हम जानते हैं। लेकिन जैसे ही हमें ये बोलना पड़ेगा कि आपको मुझे फोन करना चाहिए था, जब ये हमें नहीं आएगा तो हम हिंदी में बोलना शुरू कर देंगे। और इसका सही स्ट्रक्चर ये है जो काफी लोगों ने अभी नोट किया है, यू शुड हैव कॉल्ड मी। ये सेंटेंस गलत है जो अभी किसी ने लिखा यू शुड कॉल मी या यू शुड हैव कॉल मी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यू शुड हैव कॉल्ड मी, दैट इज राइट सेंटेंस। ये क्यों सही है क्यों गलत है ये मैं आपको बाद में व्याख्या करूंगा। ये एक छोटी सी बात हुई ग्रामर की। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि पहले मैं चाय पिया करता था लेकिन अब नहीं पीता, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, जरा लिखें फटाफट। देखो सभी लोग लिखिए भैया, गलत लिखोगे बहुत अच्छी बात है, जो गलत लिख रहे हैं ना उनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो सही लिखेंगे उनका नाम लूंगा। पहले मैं चाय पिया करता था लेकिन अब नहीं पीता, इसकी अंग्रेजी लिखें। आदरणीय सर्वेश खरे जी, हमारा टेस्ट यही है साहब, ऐसे ही चलता रहेगा। जी भाई साहब। ठीक है, उत्तर आ रहे हैं, गुड गुड, लिखते जाइए, बाकी के लोग भी लिखिए भैया। देखो दूसरों को नहीं देखना है अपन को, हमें हमारे दिमाग में जो उत्तर आ रहा है वो, पहले मैं चाय पिया करता था मतलब कोई ओल्ड हैबिट हो गई, और अब मैं नहीं पीता, वो लिखें। गुड, ये देख के तो लग रहा है बहुत अच्छी इंग्लिश है इन लोगों की, सीधे स्पोकन पे आ जाना चाहिए, कुछ ग्रामर वामर की जरूरत नहीं है ना। तो इसलिए गलत उत्तर भी लिखो भैया, जिन लोगों को नहीं आता वो लोग भी लिखिए। ये बात कितना अच्छा लिखा, previously I love tea in past but now I don't take tea, good, I appreciate। first I take tea but not now, बिल्कुल सही बात है, कम्युनिकेशन तो हो रहा है। I was taking tea but now I don't, हाँ ऐसे ही चाहिए, तब मालूम पड़ेगा कि भैया सीखना है। I would take tea after but before not, गुड। ये अंग्रेजी में बहुत मजा आया, ये चैट संभाल के रखेंगे अपन, बड़ा काम आएगी हमारी अंग्रेजी पढ़ने में, आगे ग्रामर पढ़ने में। I usually first I drank tea but now I don't, good। I drank tea but not now, previous day I love to drink tea but not now, I used to take tea but now I don't, good, fine। So many of you know the structure correct and many of you don't know, कई लोग नहीं जानते कई लोग जानते। लेकिन एक बात देखो, अगर हम बैठे हैं कहीं पर और किसी से बात कर रहे हैं और उसने हमसे कहा चाय पीजिए, ली, ओ नहीं 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 साहब, नो प्लीज, नो थैंक्स, हमने कहा नो थैंक्स, नहीं पीना चाय। अरे क्यों, वेल आई डोंट टेक टी, आप तो चाय पीते थे साहब, यस प्रीवियसली, तो इससे काम चल जाता है, पहले पीता था। लेकिन अगर भाषा की बात करें हम पढ़े लिखे लोगों के बीच में, या वे जो अच्छी अंग्रेजी जानते हैं, तो हम बोलेंगे वेल अर्लियर आई यूज्ड टू टेक टी बट नाउ आई डोंट। ये कई लोगों ने जवाब लिखा है, सही है। दैट इज वाई ग्रामर इज नीडेड, बट लिसन, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, अंग्रेजी बोलने के लिए, धारा प्रवाह बोलने के लिए ऐसा सोचते हो आपके बिना अच्छी ग्रामर के संभव नहीं है, ऐसा नहीं है, आप बोल सकते हैं। इन लोगों ने, जितने लोगों ने बोला है, सबके मीनिंग समझ में आ रहा है। प्रीवियसली आई लव टी बट नाउ आई डोंट लाइक इट, इससे भी समझ में आ रहा है। तो कम्युनिकेशन के लिए भाषा को हमको सीखना है, ग्रामर इतनी ही जरूरी है, और अपने आप बाकी की ग्रामर आएगी। दूसरी चीज है वोकैबुलरी, तो वोकैबुलरी में आप बहुत आनंद आएगा आपको, वोकैबुलरी बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग ढंग से हम सीखते रहेंगे, यू वुड कीप ऑन लर्निंग। थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस, तो हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी सी लेवल के 2-3 लोग अपने नाम को रीनेम कर कर उसके नेम के आगे क्या कर सकते हैं भाई साहब, ये लोग सामने आ जाएं ताकि शुरू में आ जाएं अपने नाम के आगे डबल ए। ये लिस्ट आपको ये पेस्ट हो रही है इसमें,
अच्छा जो कल जिन्होंने सी लेवल कहा था वो जी। सारी लिस्ट जो है चैट बॉक्स में यस ये पेस्ट हो गई है। ये सब जो है अपने आप को अनम्यूट कर लें, ये सब लोग अनम्यूट कर लें। यस यस ये सब अपने आप को अनम्यूट कर लें, जिससे कि अपन यहाँ पर आकाश जी भाई सब जो कह रहे हैं कि बातचीत कर सकें, ये सब अनम्यूट कर लें। अनम्यूट करने की सुविधा है। ये लिस्ट कहाँ पेस्ट की आपने? ये लिस्ट चैट बॉक्स में आई है। ओके, उससे स्क्रीन पर शेयर कर सकते हैं क्या? अच्छा आ गई, नाउ इट इज, थैंक यू। ओके फाइन। ये सी लेवल वाले प्रसून कुमार सिंह जी, पूनम जी, पंकज जी, सब जी मान लें। दीपक शर्मा, शिखा सिन्हा, सुनील, केशव जी, डॉक्टर बनवारी, गणेश सिंह जी, प्रवीणा पाल, प्रियंका जायसवाल, जितेंद्र मिश्रा, अनिता गर्ग, इंद्रजीत पाल, अंजलि जी, आप सब लोग अपने नाम कर भाई साहब ये क्या कर सकते हैं जिससे ये सामने आ जाए वीडियो पर? ये अनम्यूट कर लें सब अपने आप को। ये लोग अनम्यूट कर लें और हम लोग एक टॉपिक लेंगे, लेकिन जिसके आसपास नॉइज और डिस्टॉर्शन हो वो लोग ऑफ करके रखेंगे, राइट? एक टॉपिक ले रहे हैं सब, बहुत सरल सा टॉपिक बताइए। मोबाइल फोन को ले लेते हैं, राइट? ऑन मोबाइल फोन वी वुड बी टॉकिंग, we 10-15 people those who are of C level will be talking in English. A और B लेवल वाले सुनेंगे, धीरे धीरे आगे चलकर वो भी हमारे लेवल पर आएंगे। तो आप जो भी बोलना चाहता है वो बोलना शुरू कर दे भैया। एनीवन कैन स्टार्ट। और कोई सी लेवल पे आया? केशव राव जी हाथ ऊपर कर रहे हैं, प्लीज स्टार्ट केशव राव जी। I use the mobile phone daily. I teach in online classes from mobile phone. I give I understand all the student from mobile phone. I want to listen all the in they are using in from my mobile, so I would take it. Okay, thank you sir, so nice listening you sir, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, ग्रेट। देखिए भैया, आप सब लोगों से मेरा पार्टिसिपेंट्स ये कहना है, अगर हम वहां से आपको किसी के वीडियो इंपोर्टेड दिखाएंगे तो कोई फायदा नहीं। हमारे बीच के बंधु भगिनी बोलेंगे अगर, तो ये आपके लिए प्रमाण होगा, ये बोल सकते हैं, हम भी बोल सकते हैं, और ये आपकी मदद भी कर सकते हैं। कीर्ति तिवारी मैडम, मैंने आपको इसलिए म्यूट कर दिया था, पीछे से कोई डांट रहा था आपको। नाउ मैंने अनम्यूट कर दिया। इफ यू वांट टू स्पीक यू कैन स्पीक नाउ। यस। सॉरी सर, थोड़ा सा नॉइज हो रहा है घर में, बच्चे। ठीक है, मैंने फिर म्यूट कर दिया। एनीबडी एल्स? और कोई बोलना चाहता है? हाथ ऊपर कर दे, जस्ट रेज योर हैंड, यू कैन स्पीक। लेट अस लिसन टू 2-3 पीपल। ये शगुन है स्पोकन इंग्लिश क्लास का, अगर कुछ लोग बोलते हैं तो कौन और नेक्स्ट वुड लाइक टू स्पीक? If anybody, may I? Yes, please, madam, welcome. Yes, sir. Myself, Shikha Sinha. Mobile has become a basic, one of the most basic needs in our daily life. It is now helpful in taking online classes, calculations, and nowadays the children get more entertained on the mobile due to YouTube, games. And it is very beneficial for everything. As per we are going to other place also, the mobile is helpful for finding the routes and getting to right place. Very good. Thank you, Shikha madam. Thank you so much, Shikha ji. Thank you, Didi. Okay, next would like to speak. Chat box में आप अपना नाम लिख सकते हैं और बता सकते हैं अगर कोई बोलना चाहता है। Yes, प्रवीणा पाल दीदी, आप हैं बी ग्रुप में, वेरी करेक्ट, ठीक है। और कोई एक आध व्यक्ति बोलना चाहता? बहुत अच्छा लगा, शिखा दीदी को सुना हमने और आदरणीय केशव जी भाई सबको सुना। और कोई और बोलना चाहे? ओके, कल थोड़ा सा पहले हम लोग ये कर लेंगे कसरत। आदरणीय खरे साहब, राजकुमार जी, बी लेवल वालों से फोन पे बात कर लीजिएगा। उनको माया कुमारी जी कुछ बोलना चाह रही है। माया कुमारी जी अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। देखिए तो माया कुमारी जी अनम्यूट कीजिए। ओके। First of all, good morning everyone. Actually I मतलब देखिए, हम
पढ़े तो हुए हैं ग्रामर, लेकिन जब भी बोलने का आता है तो कहीं कहीं प्रॉब्लम होने क्रिएट हो जाता है। सो मतलब गाइडलाइंस का प्रॉपर हो कहीं ना कहीं दिक्कत है। और जैसे आप बोले जो सोचने के लिए, तो सोचने का कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन जैसे अभी बोलना स्टार्ट किए तो फिर ऑटोमेटिक है हिंदी में आ गए। तो इसका क्या करें सर? दीदी आप कल भी थे कि क्लास में? जी कल मैं कहीं डॉक्टर के पास गई थी, तो उसके कारण मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। दीदी थैंक यू, बट आई एम वेरी हैप्पी। आप कोशिश तो दीदी चर्चा की थी। पानी बोतल चले आप म्यूट कर दें भाई साहब, अपन सबको माया दीदी का जवाब दे दें। दीदी कल हमने सभी लोगों ने एक उत्तर दिया था, इसका 2 शब्द हैं, एक बाधा है और एक सहायक है। एक बाधक है और एक साधक है। बाधा है हेजिटेशन और सहायक है हैबिट। हमें आदत डालना पड़ेगी। आप देखो अभी 2 वाक्य अंग्रेजी के बोली आप, अगर आप आदत डालोगे बीच बीच में बोलने की, 2 से 20 भी बोलने लगेंगे और हम सब बोलेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो सी लेवल वालों का अलग लिस्ट बनाकर राजकुमार जी मॉडरेट कर लेंगे। उन लोगों को हम 10 मिनट का ग्रुप डिस्कशन कल प्रारंभ में रखेंगे और उसके बाद में हमारी आगे क्लास चलेगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ग्रामर भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, वोकैबुलरी का भंडार आपको मिल जाएगा बहुत अच्छा। अब मैं बता दूं, ग्रामर के टोटल 30 स्ट्रक्चर्स हैं। वो 30 स्ट्रक्चर किसी को आते हैं तो व्यक्ति धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, वोकैबुलरी शब्द हमें बोलने के लिए, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के लिए हमें कुल 3000 शब्दों की आवश्यकता है, जिनमें से 2500 शब्द हम सब लोगों को आते हैं। वो 3000 शब्द कौन से हैं उसकी लिस्ट मैं आपको भेज दूंगा। राजकुमार जी आप कहिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। पहले मैंने आपसे शेयर की थी बहुत पहले, शायद शिवपुरी में, तो फिर मैं शेयर कर दूंगा। तो आप लोग देखेंगे, उसमें से आपको लगेगा हाँ इसमें से अधिकांश शब्दों में आते हैं। कल के लिए आपको इतना ही करना है, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में ही सोचना है। दूसरी बात, कल से हम अपनी तरफ से एक प्रॉमिस कर रहे हैं, 3 से 4 माने 4 बजे शार्प आपकी क्लास हम खत्म कर देंगे एट 4 o'clock शार्प, because you might be having your some other engagements also. Sorry for a bit delay because what I planned yesterday I wanted to complete it. Now let me tell you in short, those who were not here yesterday, C level के लोग हैं वो कन्वर्सेशन में मॉडल होंगे, यहाँ पर बोलेंगे, दूसरे लोग उनको देखेंगे। बी लेवल के लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे हम, अलग अलग ग्रुप बनाएंगे छोटे छोटे, वो अंग्रेजी का अभ्यास करेंगे क्लास के बाद में फिर कभी भी। और ए लेवल के जो लोग हैं वे लोग बेसिक्स सीखते जाएंगे साथ में, लेकिन वो भी ए लेवल वालों का अलग ग्रुप होगा, वे वहां अभ्यास करेंगे। जब बी वाले अच्छे थोड़े इंप्रूव कर लेंगे वो ए में स्विच हो सकते हैं, ए वाले सी में आ सकते हैं। अब आप लोग कल भाई साहब हम लोग सी लेवल वालों से ये कह दें वे 10 मिनट पहले ज्वाइन हो जाएं सी लेवल। कल जो है हम यहाँ 2:30 बजे शुरू कर देंगे। कृपया ये जो सी लेवल वाले हैं जिनके नाम अभी आए हैं आपके सामने, वो सब जो है 2:45 बजे जुड़ जाएं, जिससे पहले बातचीत हो जाए, तब तक फिर दूसरे काम हो पाएंगे। राइट जी बहुत राइट। 244 पर बिल्कुल 245 पर आप लोग कल ज्वाइन हो जाएंगे। सी लेवल वाले जो कॉम्पिटेंट हैं, जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, उनको। बाकी सब लोगों के कुछ मैसेज आ रहे हैं, सर मैं बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक। अनुपम गुप्ता जी, यू वांट टू स्पीक समथिंग नाउ, देन वी वुड क्लोज टुडेज क्लास। आगे बढ़ेंगे फिर हम थिंक इन इंग्लिश की प्रैक्टिस आप सबको करते रहना है। अनुपम गुप्ता जी, अगर हम में से किसी को दिख रहे हो, सामने हो, तो हम उनको अनम्यूट कर दें। वी वुड लव टू लिसन यू। Anupam ji, we can see your chat, but we are not able to figure out where are you exactly. If you could please raise your hand so that we can unmute you. और अनुपम गुप्ता में अपने नाम के पहले 2 बार अनुपम गुप्ता जी अनम्यूट कर लीजिए। Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, Yeah, please. I want to speak, but due to hesitation, what doesn't occur me properly. So I want to say few lines on mobile. In Yes. COVID-19, mobile is the main source. Great. Mobile has become our other school. Yes. So many works of Indians economy, work from home, such that so many facilities mobile has given. Yes. Great. Sir, I'm just hesitating. I can speak. What's your name? What's your name? Sir, my name is Anupam Gupta, SVM Barnala. Okay. दीदी हैं, आचार्य जी हैं? आचार्य जी हैं सर,
दीदी हूँ, मतलब स्कूल में टीच करती हूँ। आई टेक क्लासेस 6 to 8 इंग्लिश। अच्छा देखिए भैया, क्षमा कीजिए, मुझे आवाज बहुत मधुर है, आप गा भी सकते हैं बहुत अच्छा, इसलिए। और अनुपम नाम है, सरोज है, कमल नाम है, जो हमारे कॉमन नेम होते हैं, दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग। एनीवे, आप अगर नहीं कहते ना कि मुझे हेजिटेशन होता, तो कहीं से नहीं लग रहा था कि आप अच्छा बोले, बहुत अच्छा। आई अप्रिशिएट। I love to speak English. I like English. I love English. This is my passion. That's why I teach. अनुपम जी, वी आर ट्राइंग दैट वी वुड मेक सच अ लिविंग। मैं खुद भी चाहता हूँ अपने अभ्यास के लिए भी हम लोगों का ग्रुप बना लेंगे और हम लोग बात किया करेंगे इंग्लिश में, अलग ग्रुप बना लेंगे 15-20 सी लेवल वालों का, एंड वी वुड कीप ऑन डिस्कसिंग आफ्टर दिस क्लास और बिफोर द क्लास, वंस और ट्वाइस इन अ वीक, राइट? वी वुड डेफिनेटली। अभी शुरुआत हुई है, बस 1-2 दिन में हम लोग करते हैं। थैंक यू सो मच टू यू ऑल। थैंक्स अ लॉट। एक नाम का जी धन्यवाद आप सभी का। ये आकाश जी, अनुपमा दीदी हैं बरनाला की, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक चैट बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजी हुई है, कृपया सब लोग उस लिंक को ज्वाइन कर लें और जुड़ जाएं, जिससे कि बाकी सारी सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकें। कृपया सब इस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, एक काम ये। और हाँ, जिनका होता जाए वो कृपया थंब का इम्प्रेशन बाद में यहाँ पर दे दें, चैट बॉक्स में थंब का इम्प्रेशन दे दीजिए। और आगे से हम लोग जब क्लास हो जाए करेगी, उसके बाद कुछ डाउट क्लियरिंग के लिए भी रुकेंगे, लेकिन बिल्कुल। भी नहीं है बहुत एक ये उपस्थिति फॉर्म हमने यहाँ सबमिट किया है, फीडबैक और उपस्थिति फॉर्म ये है, इसको आपको भरना है, जिससे कि आपको प्रमाण पत्र वगैरह ये प्रॉपर तरीके से मिल सके। ये उस ग्रुप पर भी हम डाल देंगे अभी थोड़ी देर बाद। और इसमें फीडबैक और कोई प्रश्न हमें समझ में नहीं आया हो, जिससे आकाश जी कल हमारी क्लियर कर सकें, तो इसको हम लोग प्राप्त कर लें। आपको कहीं कोई समस्या आ रही हो तो उनको भी इस फीडबैक फॉर्म में आप भर दें। आज हमारा ये जो सत्र है ये बहुत ही अच्छा रहा। शारदीय नवरात्र के दिन हमने काफ़ी कुछ ज्ञान की बातें आकाश जी के माध्यम से सुनी हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और निश्चित रूप से लाभकारी हमें होगा, और ये कंटिन्यूटी रहे हमारी, हम सातत्यता के साथ ये लगातार 10 दिन तक इस पारायण को हम करें, ज्ञान साधना को हम जिए। इस शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। आकाश जी का बहुत बहुत आभार। अंत में शांति मंत्र होगा, श्रीमान राजकुमार जी शांति मंत्र लेंगे। राजकुमार जी। जी भाई साहब, और शांति मंत्र के बाद में वो स्लाइड जो लोग कल नहीं थे वो लोग लिखना चाहें वो वाक्य, उसको स्लाइड शेयर कर दूंगा आकाश जी उस ग्रुप में। हाँ ग्रुप में कर देंगे, ठीक है भाई साहब, मैं लिख दूंगा, ग्रुप में ही लिख दूंगा। थैंक यू। सावधान, शांति मंत्र स्तुति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम शांति शांति। आप सभी को विद्या भारती पाठशाला की टीम की ओर से शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम प्लीज।